Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Science of Life with Dr. Mohammed Yusuf. Today we are going to discuss very important topic in physiology, and that is electrocardiography we are going to talk about. But as my routine, one ayah from Holy Quran, rather it is a part of an ayah from Surah Anam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما बतन. और ट्रांसलेशन है, और बेशर्मी की बातों के करीब भी न जाओ. जो भी बेहयाई की, बेशर्मी की, फौश कोई बात हो उसके करीब भी ना जाओ. किसी लेवल की भी बात हो, फोटो हो, फिल्म हो, बातें हो, गालियां हो, कोई डिस्कशन हो, वट किसी किस्म की भी बेहयाई की कोई बात, बेशर्मी हो, अल्लाह पाक उससे दूर रख रहे हैं, उसको हुक्म दे रहे हैं कि उसके करीब भी ना जाओ, चाहे वो खुली हो या जाहिर. आप कहाँ तक छुपेंगे? ज़ाहिर वाली बेशर्मी की बातें या छुपी हुई बेशर्मी की बातें, इन बिटवीन लाइन्स बेशर्मी की बातें भी होती हैं, तो उनके करीब भी ना जाओ. अल्लाह पाक हमें इस बात की समझ दे. मोमिन का काम ये है अल्लाह के अहकामात को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताबिक पूरा करना. अल्लाह पाक समझ अमल की तौफीक दे. So we are going to talk about the ECG. ECG recording occurs. This slide we had seen in the previous lecture when we were talking about the special conducting system of the heart, SA node, and we saw the mode of spread of this action potential in the heart. We saw that from SA node it spreads in the atria about 0.03 second. It reaches the AV node, and then some delays there, and 0.1, 0.09 delay, and then it travels along this. So these are the different timings of the depolarization of different part of the heart. So when depolarization starts from SA node, some part of the heart is depolarized, rest of the heart is still in the resting state, it is still polarized, jisko kahin. Current will be flowing from the depolarized area to polarized area, from negative area to positive area. Yes, when we say depolarization, what is depolarization? Interior become positive, and when we record from the surface, अगर surface से हम record करेंगे, it will be negative. जो एरिया डिपोलराइज होगा हार्ट का, वेंट्रिकल का, इफ वी प्लेस एन इलेक्ट्रोड इनसाइड द वेंट्रिकुलर मसल, इनसाइड द डिपोलराइज एट्रियल मसल, इनसाइड द एसे नोडल फाइबर, उसके अंदर रखेंगे, नॉर्मली इट इज नेगेटिव, दैट बिकम पॉजिटिव, इंटीरियर बिकम पॉजिटिव. तो एक्सटीरियर क्या हो जाता है? दैट बिकम्स नेगेटिव. इफ वी रिकॉर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द हार्ट, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सेल, depolarized area is negative. Otherwise तो हम depolarization किसको कहते हैं? Interior become positive. Now अगर outside से रिकॉर्ड कर रहे, exterior become positive during depolarization. So when there is depolarization occurs here somewhere, depolarization occur, this area becomes negative. Surface पे बात कर रहे हैं. This area, surface becomes negative. Rest of the heart is positive. If we place an electrode here and another electrode in here, there will be potential difference, and this will be recorded. This will be recorded. So current, magnitude of the current at different times of the cardiac cycle will be different. थोड़ा सा एरिया डिपोलराइज हुआ है, रेस्ट ऑफ द हार्ट इज स्टिल पोलराइज, थोड़ी सी करंट पैदा होगी. ज्यादा एरिया डिपोलराइज हुआ है, करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा और आखिर में फिर कम होता जाएगा. सो इफ वी रिकॉर्ड दिस फ्लो ऑफ द करंट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द हार्ट फ्रॉम द सरफेस, दिस इज ECG. ECG is recording of electrical activity of the heart during cardiac cycle. Electrical activity of the heart recorded from the surface. Heart is in this conducting, our body is conductor.
हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है दैट इज ट्रांसमिटेड ऑन द सरफेस, सरफेस पे हम इसको पिक कर सकते हैं विद दी रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मशीन के साथ हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। इफ वी प्लेस द इलेक्ट्रोड ऑन द हार्ट वो भी रिकॉर्ड करेगा, इफ वी प्लेस द इलेक्ट्रोड ऑन द सरफेस वही एक्टिविटी वी कैन पिक फ्रॉम द सरफेस, बिकॉज ये कंडक्ट हो रही है ऑन द सरफेस पूरी बॉडी में, बॉडी इज द कंडक्टर, बॉडी का सारा सिस्टम तो कंडक्ट होता है। तो सरफेस पे रिकॉर्ड, ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है सरफेस पे हम पिक करके ईसीजी रिकॉर्ड करते हैं। तो इसको ध्यान में रख के अब ईसीजी को समझेंगे हम। दिस डायग्राम इज शोइंग यू दैट इज वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं हम। द सेप्टम इज डिपोलराइज्ड, ये हियर यू कैन सी सेप्टम इज डिपोलराइज्ड, क्या मतलब है, बंडल से गुजर कर, ये एक इंस्टेंट है, एक खास लम्हे की बात कर रहे हैं, इस इंस्टेंट पे क्या हो रहा है। सेप्टम इज डिपोलराइज्ड, रेस्ट ऑफ द वेंट्रिकल इज स्टिल इन द पॉजिटिव स्टेट, ये डिपोलराइज एरिया इज नेगेटिव। अब ये बात समझ आ गई हम इसको नेगेटिव क्यों कहते हैं, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं फ्रॉम द आउटसाइड, आउटसाइड बिकम्स नेगेटिव व्हेन इज इट डिपोलराइज। सो दिस सेप्टम इज डिपोलराइज, सो करंट विल बी फ्लोइंग, किस तरफ करंट फ्लो कर रही होगी, from this negative area in this direction, in this direction, in this direction, so many vectors करंट फ्लो होगी डिफरेंट डायरेक्शन, इधर भी जा रही है इधर भी, हर नेगेटिव से जिधर उसको पॉजिटिविटी मिल रही है उधर जा रही है। तो दीज ये इलेक्ट्रिकल एरोज भी बनाए हुए हैं, करंट इज फ्लोइंग अराउंड द हार्ट, इधर भी जा रही है इधर भी जा रही है। सो दीज आर डिफरेंट वेक्टर्स, डिफरेंट करंट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस करंट का अगर हम रिजल्टेंट वेक्टर बनाए, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, रिजल्टेंट वेक्टर बनाए, उसमें क्या करते हैं, सारे करंट का रिजल्टेंट वेक्टर क्या बनेगा, से दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर, ये वो पार्शियली डिपोलराइज हार्ट है, डिफरेंट वेक्टर्स आर कैन बी रिकॉर्डेड। अगर इस जगह पे इधर भी करंट आ रही है उधर भी जा रही है, सारे वेक्टर्स मिलाकर अगर हम उसका रिजल्टेंट वेक्टर बनाएं तो say this is resultant vector, itni total length of this vector will show the magnitude of the current, इस वक्त कितनी करंट फ्लो कर रही है इन, एंड उसकी डायरेक्शन, मीन डायरेक्शन, सारी करंट का मीन डायरेक्शन, एवरेज डायरेक्शन, मीन डायरेक्शन, एवरेज लफ्ज ठीक नहीं है, मीन डायरेक्शन हमें मिल जाएगी। सो एट दिस टाइम करंट, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ दिस करंट, जो ये इस वक्त करंट पैदा हो रही है। अब इसको हम वी प्लेस एन इलेक्ट्रोड हेयर, वी प्लेस एन इलेक्ट्रोड हेयर, दिस विल रिकॉर्ड। अगर हम इलेक्ट्रोड एक यहां पे रखें और एक यहां पे रखें, ये भी फर्क होगा, देयर विल बी रिकॉर्डिंग, लेकिन इसका एक्सिस हमने चेंज कर दिया है। रिजल्टेंट वेक्टर का एक्सिस तो ये है, दिस जो भी डिग्री है अबाउट 59 डिग्री या 60 डिग्री का एंगल है, इस साइड पे एंगल अगर 60 डिग्री का एंगल है, ये उसका, अगर इसको रखेंगे ज्यादा बड़ा डिफ्लेक्शन, बड़ा मैग्नीट्यूड रिकॉर्ड होगा। अगर हम इसको यहां इलेक्ट्रोड रखें, इसका कितना पार्ट इस साइड पे फ्लो कर रहा है, कितना पार्ट इस साइड पे फ्लो कर रहा है, डिफरेंट फैक्टर वो उसको हम देखेंगे। सो इस इंस्टेंट पे इतनी करंट पैदा हो रही है और इसकी डायरेक्शन ये है, इसको हम पिक करेंगे, हम डिफरेंट जगहों पे इलेक्ट्रोड प्लेस करके इसको रिकॉर्ड करेंगे। ऐसे इलेक्ट्रोड दो रख दें तो ये तो उसी की डायरेक्शन में मैक्सिमम रिकॉर्डिंग होगी, अगर इलेक्ट्रोड यूं रखते हैं या कहीं और रखते हैं तो रिकॉर्डिंग डिफर होगी, इसी का कंपोनेंट वेक्टर रिकॉर्ड होगा। आपको याद होगा दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर इज द सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट वेक्टर्स, तो कंपोनेंट वेक्टर्स की सारी जमा करके ये बनता है। इसको देखें रिकॉर्डिंग कैसे होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये जो हमने डिफाइन किया, डिफाइन तो मैंने कर दिया है, दैट इज ग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी, इसको हम रिकॉर्ड करते हैं, वो ईसीजी चल रहा है, ये जो करंट फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में, इसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो द मशीन विच इज रिकॉर्डिंग इज दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, मशीन को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और जो रिकॉर्डिंग आएगी दैट विल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और जो मशीन है दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, दिस इज मशीन। और ये लीड्स हम आगे बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पे हम इलेक्ट्रोड्स रखते हैं। अभी तो मैंने आपको बताया नहीं है ना, इलेक्ट्रोड आपको फर्ज कर रहा हूँ ना कि इलेक्ट्रोड एक यहाँ रखें एक रखें, स्टैंडर्ड हम इलेक्ट्रोड कहाँ कहाँ पे रखते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज सिर्फ हमने देखना है कि ये ईसीजी रिकॉर्ड कैसे होती है सरफेस पे, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं।
ये ईसीजी हमने देखा हुआ है नॉर्मल कार्डियक साइकिल में, दिस ईसीजी इज रिकॉर्डेड, ये हमने पहले भी देखा हुआ है, इसको जल्दी से मैं गुजार देता हूँ, इट विल कम अगेन। दिस इज पी वेव इज रिकॉर्डेड व्हेन एट्रिया आर बीइंग डिपोलराइज्ड, देन देयर इज आइसोइलेक्ट्रिक लाइन, इसको देखेंगे आइसोइलेक्ट्रिक लाइन क्यों है, देयर इज एवी नोडल डिले, हमने वी हैव डिस्कस्ड इट, नो करंट इज फ्लोइंग, वो पूरा एट्रिया डिपोलराइज हो चुके हैं, अब करंट फ्लो नहीं कर रहा, so there is no AV nodal delay, then the depolarization of the ventricle occurs and that QRS complex is recorded, then there is isoelectric line, that is no deflection upward or downward, isoelectric line, and then T wave is the repolarization of the वेंट्रिकल्स। ये हमने ये स्लाइड पहले भी मैंने शो की हुई है कार्डिक साइकिल में। पी वेव एट्रियल डिपोलराइजेशन शो करती है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन शो करता है, टी वेव वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन करता है। अब एट्रियल रीपोलराइजेशन किधर की, वो इस दौरान में रिकॉर्ड होगी। सो एट्रियल रीपोलराइजेशन वेव इज मर्ज विद द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, जब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन रहा होता है, जब डिपोलराइज हो रहा होता है, एट्रिया रिपोलराइज हो जाते हैं, वो वेव इसके साथ शामिल होगी। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, यहां से आपने समझना, गौर करना है। दिस इज से दी मायोकार्डियम, एक मसल फाइबर है, दिस एरिया हैज बीन डिपोलराइज, डिपोलराइजेशन ऐसे होती है, इंटीरियर बिकम पॉजिटिव, एक्सटीरियर बिकम नेगेटिव, दिस इज डिपोलराइज, और हम चूंकि रिकॉर्ड बाहर से कर रहे हैं इसलिए डिपोलराइज एरिया हार्ट में हम नेगेटिव दिखा रहे हैं। दिस इट इज पार्शियली डिपोलराइज्ड मसल फाइबर और पार्शियली डिपोलराइज्ड हार्ट कह लें। So this partially depolarized muscle fiber में if we place an electrode here on the surface और दूसरा इलेक्ट्रोड भी हम सरफेस पर रखते हैं और इसको कनेक्ट करते हैं वोल्ट मीटर से, वोल्टेज रिकॉर्डर से हम करते हैं, इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देते हैं, इट विल शो डिफ्लेक्शन, करंट विल बी फ्लोइंग फ्रॉम द डिपोलराइज्ड एरिया टू द रेस्टिंग मेम्ब्रेन एरिया, जो डिपोलराइज नहीं हुआ एरिया, करंट विल बी फ्लोइंग, मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट वो इसकी रीडिंग बता देगी, कितने मिलीवोल्ट्स कितने वोल्ट्स की करंट पैदा हो रही है, इट डिपेंड्स अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस इन दोस टू एरियाज, इस तरह रिकॉर्ड होता है। इफ सम पार्ट हाफ हार्ट इज डिपोलराइज, अगर हम इलेक्ट्रोड प्लेस करते हैं ऑन द सरफेस, और ये तो हमने डायरेक्टली मायोकार्डियम पर रख दिया है, सरफेस पर रखेंगे तो ऐसे ही रिकॉर्डिंग होगी ना, इस एरिया पे डिपोलराइजेशन है, यहाँ पे नेगेटिव करंट पहुंच रही है, यहाँ पे पॉजिटिव, एंड हम वी कैन रिकॉर्ड द करंट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्रीकार्डियम पे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, और पूरी बॉडी में ये करंट इज फ्लोइंग, यहाँ पे इलेक्ट्रोड रखें करंट इधर भी होगी, और यही करंट विल बी कंडक्टेड टू द आर्म एज वेल। हाँ, आपने देखा होगा ईसीजी में यहाँ पे इलेक्ट्रोड नहीं लगाते, यहाँ पे बाजू पे लगाते हैं, वो इसी जगह को रिकॉर्ड कर रहा है जो करंट है। सो दिस इज हाउ द रिकॉर्डिंग अकर्स, इफ सम पार्ट इज डिपोलराइज्ड, some part is positive, some part is negative, current will be flowing, ये याद रख लें, current will be flowing from negative to positive, this will be a positive deflection। if current is flowing towards the positive electrode को हम कहते हैं recording electrode, if the current flows towards the recording electrode, upward deflection, ये recording हो रही है, अपवर्ड डिफ्लेक्शन, इतनी मैग्नीट्यूड की करंट जो वोल्ट मीटर इतना दिखा रहा है इस आइसोइलेक्ट्रिक लाइन से, इतना अगर हम इसको ग्राफ बना रहे हैं आइसोइलेक्ट्रिक लाइन से इतनी नीडल ऊपर आ जाएगी, उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो अपवर्ड डिफ्लेक्शन, अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो, इफ ये एरिया डिपोलराइज हो, ये पॉजिटिव हो, करंट विल बी फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन और रिकॉर्डिंग ऐसी हो, देन वेव विल बी रिकॉर्डेड डाउनवर्ड, that will be downward deflection will be recorded। लेकिन आइडिया यहाँ पे सिर्फ कितना हमने समझना है, current flows from the depolarized area to polarized area, and we place the electrode on these two areas, we can record the electrode, and if the current flows toward the positive electrode, it is the positive deflection above the line, above the isoelectric line। if current flows away from the recording electrode, it is negative recording होती है। so recording of the current flows from the depolarized area to polarized area मैं explain कर चुका हूँ, and current will be recorded if one electrode is on negative area, the other on the positive area। of course potential difference होगा तो तब भी करंट रिकॉर्ड होगा, अगर दोनों पॉजिटिव पे हैं there is no potential difference, there is no recording of current। so current will be recorded only when if one electrode is at positive area, the other is on negative area। no deflection will be recorded if both the electrodes are on positive area or both the electrodes are on negative area।
पोटेंशियल डिफरेंट ना हो तो नहीं हो। अब ये डायग्राम में देख ले, ये डायग्राम है, 2-3 हमने वोल्ट मीटर लगाए हुए हैं। ये वोल्ट मीटर जो है नेगेटिव के साथ ये कनेक्ट हुआ है एंड नेगेटिव के साथ ये पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू नेगेटिव एरिया एंड दिस नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू व्हाट इज द रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड। कौन सा होता है? ये वाला। तो करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम अवे फ्रॉम दिस, करंट इज अवे फ्लोइंग द नेगेटिव एरिया टू पॉजिटिव एरिया। इसको देखें, ये बाकी लाइनें को भूल जाएं। अगर सिर्फ ये दो इलेक्ट्रोड्स हों, दिस इज द नेगेटिव, पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, ये नेगेटिव, करंट किधर जा रही है? दिस इज रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है। इफ द करंट इज फ्लोइंग अवे फ्रॉम दिस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, away from the positive electrode, it will return negative deflection। ये नीडल देखे नेगेटिव साइड पे, ये वो वाली नीडल है जो पिछली डायग्राम में देखी थी। दैट इज this negative is connected with negative area, positive is connected with the positive area, current is flowing from the negative to recording electrode, positive deflection is recorded। और सेंटर वाले में क्या किया है? both the electrodes are on positive, तो उसमें no deflection is recorded। अगर both the electrodes are on negative, फिर no deflection will be recorded। So current flows from the depolarized area to polarized area। If the current is flowing toward the positive electrode, it will be positive deflection. If it is flowing away from the positive electrode, it will be negative deflection। ECG में ज्यादा वेव तो पॉजिटिव है, P wave is positive, Q wave is negative, R wave is positive, S wave is negative, then T wave is positive। वो हम देखेंगे कि इस वक्त क्यों ये नेगेटिव वेव क्यों बनी है। अवे फ्रॉम द रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड जब जा रही होगी नेगेटिव वेव बनेगी। सो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड उसको रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड कहते हैं एंड द करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स इट, अपवर्ड डिफ्लेक्शन विल बी रिकॉर्डेड। एक्सप्लेन कर चुके हैं हम, पॉजिटिव वेव विल बी रिकॉर्डेड एंड इफ करंट इज फ्लोइंग अवे फ्रॉम इट, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन और नेगेटिव वेव विल बी रिकॉर्डेड। नाउ डीपोलराइजेशन एक्शन पोटेंशियल हमने पढ़ा हुआ है। अब जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, दिस इज नॉट एक्शन पोटेंशियल रिकॉर्ड। एक्शन पोटेंशियल हमने रिकॉर्ड कैसे किया था? वी प्लेस्ड एन इलेक्ट्रोड इनसाइड द सेल एंड वन इलेक्ट्रोड आउटसाइड द सेल एंड वी रिकॉर्डेड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। जब अंदर पॉजिटिव होता है तो अंदर डिपोलराइजेशन होती है, अंदर बिकम्स पॉजिटिव एज कंपेयर टू। उसको जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो वो एक्शन पोटेंशियल मसल का भी और वेंटिकुलर मसल का, ऐसे नोड का हमने देखा हुआ है। ये जो हम इलेक्ट्रोड हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, दिस इज नॉट एक्शन पोटेंशियल, ये एक्शन पोटेंशियल नहीं है। उस एक्शन पोटेंशियल के ट्रेवल से जो हार्ट में करंट पैदा हो रहा है, फ्लोइंग करंट फ्रॉम द डिफरेंट एरियाज ऑफ द हार्ट, जो सरफेस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये उसका रिकॉर्ड है। दिस इज नॉट द रिकॉर्डिंग ऑफ द डीपोलराइजेशन, ये डीपोलराइजेशन की रिकॉर्डिंग नहीं है। पार्शियली डीपोलराइज हार्ट, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम द डीपोलराइज टू पोलराइज एरिया, और इस करंट को हम रिकॉर्ड करें। नाउ दिस इज एक्शन, दिस इज दैट हमने प्लेटो बनाया था, दिस इज द एक्शन पोटेंशियल, दिस इज डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंटिकुलर मसल। हम वेंटिकुलर मसल की डीपोलराइजेशन एंड देन प्लेटो एंड रीपोलराइजेशन, दिस इज एक्शन पोटेंशियल। जब हमने इलेक्ट्रोड प्लेस किए थे इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन एंड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, ये एक्शन पोटेंशियल रिकॉर्ड हुआ था। अब ये जो ईसीजी रिकॉर्ड हो रही है, हमने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या बताया पिछली स्लाइड में? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इज द डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल ये है, डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल ये एरिया है। तो उस दौरान में दिस होल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स विल बी रिकॉर्डेड। और टी वेव हमने क्या बताया? इट इज रीपोलराइजेशन। जब रीपोलराइज हो रहा होता है उस वक्त जो रीपोलराइज भी किसी खास पैटर्न पे होगा ना। हमने डीपोलराइजेशन वाला वो पहली डायग्राम जो दिखाई है, ये एरिया डिपोलराइज हुआ, अगला एरिया डिपोलराइज हुआ, अगला एरिया डिपोलराइज हुआ, उस वजह से ये वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन इस तरह ये रिकॉर्डिंग होगी। और जब रीपोलराइज होगा वो भी होगा ना, पहले ये एरिया रीपोलराइज हुआ है, फिर ये एरिया रीपोलराइज हुआ है, उसकी वेव रिकॉर्ड होगी, तो उसकी करंट इज रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ टी वेव। तो ये depolarization of the ventricle is recorded as QRS complex and repolarization is recorded as T wave। और ये जो आइसोइलेक्ट्रिक लाइन है ये वो प्लेटो को रिकॉर्ड कर रही है। जब करंट प्लेटो आइसोइलेक्ट्रिक लाइन के दौरान दिस प्लेटो रिकॉर्ड हो रहा है।
नाउ एक्शन पोटेंशियल हमने कहा वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन रिगार्ड्स क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ये हमने बात कर ली अभी, पहले भी की। एंड वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन इज टी वेव, ये भी अभी हमने बात कर ली। सो करंट रिकॉर्डेड ओनली इन अ पार्शियली डिपोलराइज हार्ट, ये पहले बोल चुका हूं, पार्शियली डिपोलराइज हो। अगर पूरा हार्ट रेस्टिंग स्टेट में है, देर इज नो डिपोलराइजेशन एरिया, कोई भी नहीं, ऐसे नोट्स हो गई है, फर्ज करें देर इज नो एक्टिविटी इन द हार्ट, नो करंट विल बी रिकॉर्डेड, आइसोइलेक्ट्रिक लाइन, सीधी लाइन आएगी। वो ये बंदा मर जाता है, देर इज नो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, आपने फिल्मों में देखा होगा ना, ईसीजी की लाइन सीधी हो जाती है, तो देर इज नो करंट फ्लो। सो दी करंट रिकॉर्डेड ओनली इफ द हार्ट इज पार्शियली डिपोलराइज। अगर कंप्लीटली डिपोलराइज हो जाए, कब होगा? व्हेन होल ऑफ द वेंट्रिकल हैज डिपोलराइज्ड, अब नई इंपल्स आएगी तब डिपोलराइज। होल ऑफ द वेंट्रिकल हैज डिपोलराइज, तो फिर तो करंट खत्म हो जाएगी, इसलिए टी वेव के बाद सीधी लाइन हो जाती है। मैं वापस जाता हूं, किधर है वो, ये होल ऑफ द वेंट्रिकल हैज डिपोलराइज, जब डिपोलराइज हो गया तो आइसोइलेक्ट्रिक लाइन आ गई है। दोबारा कब शुरू होगा? जब रिपोलर करंट फ्लो शो होगा। टी वेव के बाद भी जब टी वेव कंप्लीटली रिपोलराइज हो गया है, तो फिर भी ये करंट, ये वाला एरिया आ जाएगा। देयर विल बी आइसोइलेक्ट्रिक लाइन बिफोर टी वेव एंड आफ्टर टी वेव। बिफोर टी वेव कंप्लीटली डिपोलराइज है, और आफ्टर टी वेव इट इज कंप्लीटली पोलराइज स्टेट है। तो ये क्या बात कर रहे हैं? करंट रिकॉर्डेड ओनली इन पार्शियली डिपोलराइज हार्ट, नो करंट रिकॉर्डेड व्हेन हार्ट इज आइदर कंप्लीटली डिपोलराइज, कंप्लीटली डिपोलराइज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बाद वाली लाइन जो है, जिसको हम एसटी सेगमेंट कहते हैं, अभी उसको हम बात नहीं कर रहे। एसटी सेगमेंट आइसोइलेक्ट्रिक लाइन पे होता है। तो आइसोइलेक्ट्रिक लाइन क्यों हो रहा है? कंप्लीटली डिपोलराइज हो गया, नो करंट इज शोन, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। तो बोथ ही इलेक्ट्रोड आर एट द सेम पोटेंशियल, जो भी पोटेंशियल है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इट इज कंप्लीटली डिपोलराइज, होल ऑफ द हार्ट इज नेगेटिव आउटसाइड, so there is no recording। आर कंप्लीटली रिपोलराइज, यानी जब टी वेव भी पैदा हो गई है, टी वेव ने रिपोलराइजेशन कर दिया है पूरी एट्रिया की, वेंट्रिकल की एट्रिया तो पहले रिपोलराइज हो चुके हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के दौरान। तो उस वक्त भी टी वेव से बाद भी नए साइकिल शुरू होने, पी वेव से पहले पहले, दैट इज आइसोइलेक्ट्रिक लाइन। तो दैट्स हाउ दिस करंट इज प्रोड्यूस्ड। पार्शियली डिपोलराइज हार्ट में डिफरेंट एरिया, डिफरेंट साइड पे जाते हैं और रिजल्टेंट वेक्टर पैदा होता है, उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब इसको रिकॉर्डिंग हम देखते हैं कि इसके 12 जगह से हम 12 लीड्स लगवाते हैं हम रिकॉर्ड करने के लिए, उसको हम आगे देखेंगे, कल देखेंगे इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में। सो दी ईसीजी पेपर को हम पहले समझ लें कि ये रिकॉर्डिंग जो हम ईसीजी मशीन में जो पेपर चलाते हैं, वो आपने देखा होगा कि ऐसे देयर आर मार्किंग स्क्वेयर्स बने हुए हैं, वर्टिकल स्क्वेयर्स एज वेल एज दी हॉरिजॉन्टल स्क्वेयर्स आर देयर। इट इज द ईसीजी पेपर, उस पे लाइनें बनी हुई हैं, वर्टिकल भी एंड हॉरिजॉन्टल भी, और ये स्क्वेयर्स भी बने हुए हैं। दिस ईसीजी पेपर, पुरानी ईसीजी मशीन जो आती थी उसमें इंक राइटिंग होती थी, वो जो रिकॉर्डर ऊपर नीचे चलता था ना, जब करंट जब फ्लो करती थी, अपवर्ड डिफ्लेक्शन या उसके अंदर इंक होती थी, तो इंक से लिखता था। अब ऐसा नहीं है, अब जो ईसीजी मशीन के अंदर पेपर डालते हैं, दैट इज हीट सेंसिटिव पेपर। ये जो रिकॉर्ड करने वाला इंस्ट्रूमेंट है ना, ये गर्म होके हॉट हो जाता है, ये पेपर पे जहां टच करता है, दिस ईसीजी पेपर इज हीट सेंसिटिव, जो जहां पर टच करता है वो जगह काली हो जाती है। सो जब ये ऊपर मूव करता है, तो सो दैट ब्लैक रिकॉर्डिंग इज बिकॉज ऑफ द हीट सेंसिटिविटी ऑफ इट। सो हीट सेंसिटिव पेपर होता है। अब इंक राइटिंग राइटेबल खत्म हो गया। सो दिस ईसीजी पेपर हैज गॉट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, और ये स्मॉल स्क्वेयर्स बना रहे हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन। वर्टिकल भी 1 मिलीमीटर अपार्ट लाइंस है, और हॉरिजॉन्टल भी 1 मिलीमीटर अपार्ट लाइंस है। सो 1 मिलीमीटर, ये भी 1 मिलीमीटर ये स्क्वायर है, ये भी 1 मिलीमीटर है, और वर्टिकल भी 1 मिलीमीटर है। ईसीजी पेपर, ये देखें, ईसीजी पेपर मशीन में रन कर रहा है एट सर्टेन स्पीड। क्या मतलब है? कितने खाने पर मिनट या पर सेकंड निकल रहे हैं, दिस इज दी स्पीड ऑफ द पेपर, मशीन में चलने वाली होगी। दिस विल बी नंबर ऑफ स्क्वेयर्स पर सेकंड पर मिनट, कितने निकलते हैं, नंबर ऑफ स्क्वेयर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वी रिकॉर्ड टाइम्स, हम इसको टाइम रिकॉर्ड करते हैं, कितनी देर में 25 खाने एक सेकंड में निकलते हैं, उसकी बात हम करते हैं। तो इफ दी 25 स्क्वेयर्स एक सेकंड में निकलते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि 25 एक सेकंड में, एक से लेकर यहां तक 25 स्क्वेयर जहां तक होते हैं, इतना ईसीजी पेपर निकलेगा। और अपवर्ड, ये क्या है? डिफ्लेक्शन अपवर्ड, डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड, ये क्या शो कर रही है? वोल्टेज।
हमने वोल्टेज की बात की थी ना, जितनी ज्यादा वोल्टेज पॉजिटिव होगी अपवर्ड डिफ्लेक्शन, ये QRS कॉम्प्लेक्स देखें ना, यहां से लेकर यहां तक आ गई, कितनी बड़ी वोल्टेज है। वेंट्रिकल बड़ा मसल है ना, उनमें वोल्टेज भी ज्यादा पैदा होती है। एटीआर छोटा मसल है, वोल्टेज भी इतनी सी है, पी वेव छोटी सी है। QRS कॉम्प्लेक्स बड़ा है, आर वेव बड़ी है, वेंट्रिकुलर मसल बहुत बड़ा है, उसकी डिपोलराइजेशन का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है। सो दैट्स व्हाई वेरी पॉजिटिव वोल्ट, वो इतनी वोल्टेज की हम रिकॉर्ड करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टाइमिंग्स रिकॉर्ड होती हैं और वर्टिकल डायरेक्शन में वोल्टेज ऑफ द वेव्स रिकॉर्ड होती है। सो स्पीड ऑफ ईसीजी पेपर जो स्टैंडर्ड स्पीड है, हमने ईसीजी मशीन की हमने स्पीड जो एडजस्ट किया स्टैंडर्ड 25 स्क्वायर पर सेकेंड 25 मिलीमीटर, ये 1 मिलीमीटर है ना, 25 मिलीमीटर बोलो या 25 स्क्वायर बोलो, एक ही बात है। 25 स्क्वायर पर सेकेंड ये इसकी स्पीड है। कभी कभी जब टैकीकार्डिया होता है तो हम ईसीजी पेपर की या जब हार्ट रेट डिफर करता है तो हम इसकी स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो नॉर्मल स्टैंडर्ड तो ये है कि 25 मिलीमीटर पर सेकंड या 25 स्मॉल शेयर पर सेकंड इसकी स्पीड होती है। और टाइमिंग आप देखें, टाइमिंग कैसे, एक सेकंड में 25 खाने चला है, 25 मिलीमीटर या 25 खाने चला है, तो एक खाने का टाइम कितना होगा, 1/25 डिवाइड करेंगे। एक सेकंड में 25 खाने हैं तो एक खाने का टाइम, 25 खानों का टाइम 1 सेकंड है, तो एक खाने का टाइम कितना होगा, 1/25। इसको कैलकुलेट करें, इट इज 0.04 सेकंड। तो टाइमिंग इज 1 स्मॉल स्क्वायर इज 1/25 स्क्वायर। एक सेकंड में 25 है तो एक स्मॉल स्क्वायर का टाइम कितना होगा, 1/25। दिस इज इक्वल टू 0.04। अब ये पक्का याद हो जाए, दैट इज एक स्मॉल स्क्वायर का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टाइमिंग्स कितना है, 0.04 सेकंड। अब यहाँ पे पी वेव को देखें, पी वेव देखें, अगर फर्ज करें यही ईसीजी है, 1 2 3 और आधा खाना अगला, ये कितना टाइम हो जाएगा, वी कैन कैलकुलेट द टाइम। पी वेव को कितना टाइम, दो खाने लगे हैं और एक अगला आधा खाना लगे, दो का मतलब 0.08 और आधा जब कहेंगे तो 0.02, वो 0.1 सेकंड, इतना लग जाएगा, इट विल बी 0.1 सेकंड। सो वी कैन कैलकुलेट द टाइमिंग ऑफ डिफरेंट वेव्स because we know the 1 small square shows how much time, 0.04 second. और vertical direction में that is the magnitude of the depolarization, that is the current की millivolts voltage of the wave show करती है। so the ये एक खाने को हमने बड़ा कर लिया है, ये तो 0.04 सेकंड दिखा रहा है एक छोटा खाना, और इस डायरेक्शन में हम वोल्टेज रिकॉर्ड करते हैं। और ये स्टैंडर्ड हमने ईसीजी मशीन को हमने स्टैंडर्डाइज किया हुआ है कि कितनी वोल्टेज हो तो कितने खाने शो करें। स्टैंडर्ड हमारा ये है, दैट इज वोल्टेज हम करते हैं स्टैंडर्ड 1 स्मॉल स्क्वायर को हमने शो किया हुआ है 0.1 मिलीवोल्ट, ये 5 स्मॉल स्क्वायर हो देंगे 0.5 मिलीवोल्ट। और जब दो खाने, ये 5 खाने की, ये जो ईसीजी पेपर मशीन में देखें छोटी लाइनें हैं और फिर मोटी लाइनें, मोटी लाइनों के 5 5 वाला बड़ा स्क्वायर हो जाता है, स्मॉल स्क्वायर 1 है, ये 5 वाला बड़ा स्क्वायर हो जाता है। सो दिस 1 वोल्टेज इस डायरेक्शन में 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5, और दो बिग स्क्वायर जब यहां तक आएगा दैट विल बी 1 मिलीवोल्ट। अब यहाँ पे गिन लेंगे कितने बड़े स्क्वायर आ गए हैं या कितने छोटे स्क्वायर आ गए हैं, उसको मल्टीप्लाई कर लें 0.1 से। सो 1 स्मॉल स्क्वायर इन दी वर्टिकल डायरेक्शन रिप्रेजेंट्स 0.1 मिलीवोल्ट्स ऑफ वोल्टेज। तो दैट्स हाउ इट इज रिकॉर्डेड। ये 0.5 मिलीवोल्ट्स इसलिए कि 5 स्क्वायर हो गए। ये ईसीजी रिकॉर्ड हो रही है। चलिए इसको हम आगे देखें। नाउ जी नॉर्मल वेव इंटरवल्स ईसीजी, हमने ईसीजी में इंटरवल देखे हुए हैं, फिर हम इसकी दैट इज ये देखें पी वेव, इसको हम बात करें, इट इज दी रिप्रेजेंट दी एटीएल डिपोलराइजेशन। पहले बात की, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है इसकी, थोड़ी दैट इज इसकी मैक्सिमम, इसकी जो वोल्टेज होती है जो कितनी मैग्नीट्यूड की होती है 1.5 टू 2.5 मिलीवोल्ट्स, अगर इसकी वोल्टेज मेजर करें 2.5 मिलीवोल्ट तक जाती है। एंड पी क्यू सेगमेंट, पी वेव से क्यू वेव तक ये जो सेगमेंट है आइसोइलेक्ट्रिक लाइन है, आइसोइलेक्ट्रिक लाइन बिटवीन पी वेव एंड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, इसको पी क्यू सेगमेंट कहते हैं। और आमतौर पर ये क्यू वेव नजर नहीं आती है, ये इतनी छोटी होती है। ईसीजी जब देखते हैं तो आमतौर पर
क्यू वेव नजर नहीं आ रही होती, आर वेव ही नजर आ रही होती है। ये छोटी वेव नजर नहीं आती, ये इधर टच करता हुआ नजर आता है, इसलिए इसको पी आर इंटरवल बोलते हैं। आमतौर पर हम इसको पी क्यू इंटरवल को पी आर इंटरवल बोलते हैं कि क्यू वेव नजर नहीं आती, आर वेव नजर आ रही है। ये जो है ये क्या शो कर रही है, ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन है। नो करंट इज फ्लोइंग, क्यों? करंट इज बीइंग विदहेल्ड इन एबी नोडल डिले को हमने डिस्कस किया हुआ है। तो ये 0.09 सेकंड का एबी नोडल डिले शो करती है, और ये टाइम देखें ना, 2 खाने के करीब 0.08 या 0.09 सेकंड शो कर रही है, 2 खाने तकरीबन लगते हैं आइसोइलेक्ट्रिक लाइन। QRS complex is the ventricular depolarization, हमने पहले भी बात की हुई है। इट इज द ventricular depolarization एंड नॉर्मल ड्यूरेशन इसकी भी 0.06 सेकंड, इसका मतलब है 1.5 खाना। 0.04 सेकंड है एक खाना, और 1.5 खाना होगा 0.06 सेकंड, और 2 खाने होंगे 0.08 सेकंड। तो 1.5 से लेकर 2 खाने तक टाइम लग जाए QRS कम्प्लेक्स, ये इतना 2 खाने उसमें लग जाते हैं। तो इसकी टाइमिंग है सेकंड टाइमिंग। वो ECG, वो पी वेव रिकॉर्ड हो रहा है, NQRS कम्प्लेक्स रिकॉर्ड हुआ है, ये ST सेगमेंट है, वो T वेव वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हो रही है। दोबारा देख लें, दोबारा शायद चलेगा। ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन, पी वेव, एट्रियल डीपोलराइजेशन, एंड देन QRS कम्प्लेक्स, देन ST सेगमेंट, एंड देन T वेव इज बीइंग रिकॉर्ड। ये इसकी सीक्वेंस है कार्डिक साइकिल का। नॉर्मल वेव एंड इंटरवल्स, ये भी हमने कुछ बात कर लिया, कुछ उसको एक्सप्लेनेशन आ गया। ST सेगमेंट कौन सा है? QRS कम्प्लेक्स एस वेव के बाद वाला जो सेगमेंट है, वो उसको हम कहते हैं ST सेगमेंट। ST सेगमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ द QRS कम्प्लेक्स टू द एंड ऑफ द Q वेव, इसको हम कहते हैं ST सेगमेंट। दैट इज आइसोइलेक्ट्रिक लाइन बिटवीन द QRS एंड T वेव। ये जगह, ये ST सेगमेंट है। दिस एरिया isoelectric line is ST segment, and this is the ventricles are contracting and emptying, वो depolarize हो चुके हैं। मैकेनिकल में ये it is contracting, और इलेक्ट्रिकल में it is completely depolarized, ventricles are completely depolarized। तो तकरीबन isoelectric line है ये। नो करंट इज फ्लोइंग, कंप्लीटली डीपोलराइज्ड वेंट्रिकल्स हैं। तो टी वेव फिर कब रिकॉर्ड होगी? व्हेन द रीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रियम वेंट्रिकल विल स्टार्ट। जब ये so T wave shows the depolarization of this T wave that is showing 2.5 to 3 millimeter। ये देखें 1 2 3 2.5 मिलीमीटर, 2.5 मिलीमीटर इसकी दिखा रहे हैं। राउंडेड टॉप, ये तो बड़ी पीक वाली है ना, ये राउंडेड टॉप है, टाइम लग रहा है। तो टी वेव वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन वेव है, इसकी वोल्टेज ये। कभी कभी यू वेव भी आती है, वेरी रेयरली, हमें आमतौर पर ECG में नहीं आती, यहाँ पे शो की हुई है यू वेव। यू वेव क्या है? ये भी रिपोलराइजेशन वेव है। वो जो कार्डी टेंडिनी के साथ अंदर वेंट्रिकल के अंदर जो कार्डी टेंडिनी के पेपिलरी मसल्स हमने डिस्कस किए थे, वेल्व को अंदर दूसरी तरफ खुलने से रोकने के लिए धागे बंधे हुए हैं, जो वो मसल हैं, वो डिपोलराइज आखिर में होते हैं। इसके बाद डिपोलराइज होते हैं, तो उनकी भी छोटी सी वेव रिकॉर्ड हो जाती है। तो ड्यू टू दी रिपोलराइजेशन ऑफ द पेपिलरी मसल, उनको पेपिलरी मसल्स कहते हैं। सो दैट इज ECG। और क्या रह गया? नॉर्मल वेव्स एंड इंटरवल्स ऑफ ECG। ये हमने ज्यादा बात, PR इंटरवल वही जिसको PQ इंटरवल बोल दिया था। PR इंटरवल क्या शो कर रहा है? एंड ऑफ द P वेव, depolarization of it is showing the time PQ segment is isoelectric line, PR interval from the beginning of the P wave to beginning of QRS complex। पहले मैंने शायद बोला था, गलत बोला था, उसको करेक्ट कर लें। PQ सेगमेंट आइसोइलेक्ट्रिक सेगमेंट है। PR इंटरवल में P वेव भी शामिल हो जाती है। ये आइसोइलेक्ट्रिक सेगमेंट प्लस P वेव, this will be from the beginning of the P wave to the beginning of QRS complex। ये that include P wave plus PQ segment, वॉइस या PR सेगमेंट उसको बोल रहे हैं। उन दोनों को मिलाकर PR इंटरवल है। क्या शो कर रहा है? this PR इंटरवल इज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ P wave to the beginning of QRS complex। ये सारा, ये PQ सेगमेंट भी और P wave भी इसमें शामिल के PR इंटरवल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंटरवल, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे हार्ट ब्लॉक्स जब डिस्कस करें। PR ये क्या शो कर रहा है? यहाँ पे नजर आ रहा है एट्रियल डीपोलराइजेशन एंड देन एवी नोडल डिले, दोनों को ये शो कर रहा है। तो दिस इज दी नॉर्मल इज 0.12, हमने किया हुआ है ना। 0.03 में यहाँ तक आया है, 0.09 का वो डिले है, तो टोटल कितना बन गया? 0.12। तो इट इज 0.12, मैक्सिमम अप टू 0.2, नॉर्मल 0.12, 0.13, 0.14, 0.16, मैक्सिमम अगर अलाउ होगा 0.2 तक। इससे ज्यादा होगा, इसको हम कहते हैं हार्ट ब्लॉक, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। उसको ECG आगे हम डिस्कस करेंगे एरिथमिया में। तो इसकी नॉर्मल ड्यूरेशन 0.1 to 2 तक है, 0.2 तक है। तो PR इंटरवल
QT इंटरवल व्हाट इज दैट? दैट इज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ क्यू वेव, क्यू वेव के बिगिनिंग, ये क्यू वेव है, उसके बिगिनिंग से टू द एंड ऑफ टी वेव, यहां से लेकर यहां तक ये क्या शो कर रहा है? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एस टी सेगमेंट टी वेव, यानी वेंट्रिकुलर एक्टिविटी सारी की सारी, ये क्या शो करता है? क्यूटी इंटरवल, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एज वेल एज रीपोलराइजेशन, दरमियान में आइसोइलेक्ट्रिक लाइन एस टी सेगमेंट। तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंटरवल इसको कहते हैं। आप इसके खाने गिन लें 0.35 टू 0.4 सेकंड, ये सारे खाने गिने ना यहां तक, इट विल बी 0.04 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल गिव अस द टोटल ड्यूरेशन ऑफ दिस क्यूटी इंटरवल, दैट इज 0.3 टू 0.42 सेकंड्स। वेरिएबल विद हार्ट रेट, ऑफ कोर्स हार्ट रेट जब आगे पीछे होगा तो ये वेरिएबल होगा। सो दैट इज ए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ईसीजी। अब ये ईसीजी हम रिकॉर्ड करते हैं फ्रॉम द सरफेस, कहां पे हम इलेक्ट्रोड रखते हैं तो वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक लीड्स कहां पे हमने इलेक्ट्रोड रखने हैं, तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। जो 12 लीड्स इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, हमारे स्टैंडर्ड हमारी लीड्स 12 होती हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ रही है। इफ़ यू हैव गॉट स्टिल सम क्वेरी, सम क्वेश्चन, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लें, आई विल आंसर इंशाल्लाह ताला। और इसको डू शेयर टू रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, और सब्सक्राइब भी कर दें उनको लोगों के लिए, ताकि आसानी से आपको ये वीडियो मिल जाया करे। थैंक यू वेरी मच, होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह।